أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ٹھیک ہے جی، ابھی آ رہے ہیں لوگ۔ ابھی ہم ایسے کرتے ہیں، پہلے پوائنٹس کو ریممبر پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو اچھا ہے، آپ لوگوں کے لیے میں پڑھ رہی تھی ان کو، تو فائدے کی ہیں تو ان کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ کس کی انگلش اچھی ہے؟ کون پڑھے گا یا میں پڑھوں؟ میں پڑھوں۔ ایک سیکنڈ، کوئی پڑھنا چاہ رہے ہیں انگلش میں؟ میں پڑھ لیتی ہوں۔ چلیے پڑھیے، دیکھتی ہوں کتنی اچھی انگلش ہے۔ صحیح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، سمجھا کے دوسروں کو۔ In this lesson we learned the following. ہوں، The fail, the subject of a verb sentence. فائل، File, the subject سبجیکٹ of جو ہوتا ہے وہ فیل تو نہیں ہوتا نا، سبجیکٹ تو فائل ہوتا ہے۔ a جو فائل ہوتا ہے نا اس کو انگلش میں سبجیکٹ کہتے ہیں، اور جو مفعول ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ آبجیکٹ کہتے ہیں۔ The file, the subject of a verbal sentence. We have already learned that in Arabic there are two types of sentence, nominal and verbal. The nominal sentence commences with a noun and the verbal sentence commences with a verb. The subject of a verbal sentence is called file. Al-fa'ilu. Bilalun zahaba. اچھا، اس کو ایسے پڑھیں گے؟ عربی ادھر سے پڑھی جاتی Oh, ہے۔ sorry. English کی طرف پڑھ دیتے۔ Zahaba Bilalun. Bilal went. تو اب اس میں فیل کیا، یہ کون سا سینٹینس ہے؟ وربل ہے یا نومینل ہے؟ وربل ہے۔ ہاں، ورب یعنی وہ ہے نا، جملہ فعلیہ ہے نا؟ جی فعلیہ، ورب سے سٹارٹ ہو رہا ہے، فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ جی سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو وربل سینٹینس، ناؤن سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو نومینل سینٹینس۔ تھوڑا سا لائف میں آگے بھی جانا چاہیے نا، ادھر ہی تو نہیں رہنا نا۔ کل کسی بچے کو بھی پڑھانا پڑ سکتا ہے کچھ، تو بولے گا یہ کیا ہے، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ، تو پھر ان کے لیے تو ہارڈ ہوگا نا۔ جی تو جو بچے اسکولوں میں پڑھے ہوتے ہیں انگلش، ان کے لیے تھوڑا انگلش ایزی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال آپ خود سمجھ لیں کہ اچھا، تو پھر اس کا یہ کیا ہے؟ یہ ورب ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ اس کا فائل ہے، سبجیکٹ یا ناؤن فائل؟ سبجیکٹ ہے۔ نہیں، ناؤن نہیں کہیں گے، فائل، سبجیکٹ فعل کے بعد فائل ہی ہوتا ہے نا، اس کو فائل۔ سبجیکٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی اور فائل کے ہوتا ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، دا فائل از مرفوع۔ مرفوع، جی۔ لیکن ہر اسم جو ہوتا ہے نا مرفوع، وہ فائل نہیں بن سکتا۔ کب بنے گا مرفوع اسم فائل؟ کون بتائے گا؟ مرفوع اسم تو مبتدا بھی بن جاتا ہے، خبر بھی بن جاتا ہے۔ مرفوع اسم ھذا بلال، فائل، جب فعل کے بعد آئے گا تو فائل بنے گا۔ جب فعل کے بعد آئے گا تو فائل ہوگا۔ اگر دیکھیں یہاں بلال آ رہا ہے تو اس کو فائل تھوڑی بولیں گے، اس کو کیا بولیں گے؟ ھذا مبتدا بلال خبر، جی ٹھیک ہے۔ اگر بلال کو شروع میں لگا دیتے تو بلال مرفوع تو ہے لیکن مبتدا بن جائے گا نا، یہ مبتدا بن جائے گا۔ بلال، آگے کچھ صالح لگا دیں، اس کی خبر بن جائے گی۔ تو جب تک فعل نہیں آئے گا وہ بلال جو ہے وہ فائل نہیں بنے گا۔ تو پیچھے فعل ہوگا تو فائل آئے گا۔ یہ باتیں ساری آپ نے جملہ فعلیہ کے بارے میں سمجھنی ہے، ایسے ہی ہر ایک اٹھا کے نہیں بنا دیتے۔ اور آگے اگر منصوب اسم آ جائے گا تو وہ کیا بن جائے گا پھر اس فعل کا؟ مرفوع، مرفوع۔ منصوب اسم آئے گا تو مرفوع بن جائے گا، مفعول۔ مفعول، الٹی باتیں کیوں نکالتے ہیں آپ لوگ؟ مفعول، مفعول۔ مفعول، سوری۔ تو مفعول اور مرفوع میں فرق کوئی نہیں ہے، یہی تو میں چاہتی ہوں فرق ہو آپ کے اندر۔ مرفوع جو ہوتا ہے وہ دمے والا لفظ ہوتا ہے، یہ مرفوع ہے، یہ مفعول نہیں ہے۔ نہیں، وہی کہنا چاہ رہی تھی میں۔ تو کوئی بات نہیں ہے، نیکسٹ ٹائم نہیں کہنا۔ دا فائل از مرفوع، دا فائل کین بی پروناؤن۔ اب یہاں پہ تو کون سا فائل آ رہا ہے؟ پروناؤن آ رہا ہے یا ناؤن آ رہا ہے؟ ناؤن آ رہا ہے، یعنی
पहले और चौथे सीगे में इसम जाहिर फाइल आ सकता है। जी समझ आई या नहीं आई? हाँ पहले और पहले चौथे सीगे में इसम जाहिर फाइल आ जी सकता है। जी ज़हाबत मरियमू भी हो सकता है, ठीक जी है। तो पहला और चौथा सीगा जो ता वाला सुकून, उसमें भी आपका इसम जाहिर फाइल, बाकियों में नहीं आ सकता। अभी जी वो वजह बताएंगे कि क्यों नहीं आ सकता। हम्म, मसलन जी आप कहते हैं ज़हाबू, ठीक है ना, हम्म और आप कहते हैं कि अल औलादू, हम्म, ये कहना सही है? नहीं क्यों सही नहीं है? बिकॉज ये तीसरे सीगे में से है तो हम्म, इसका सब जाहिर नहीं आएगा। इसम जाहिर नहीं आएगा, जी क्योंकि यहाँ भी फाइल है और ये भी आपने फाइल बना दिया ना, जी हम्म तो ये दो दो फाइल हो गए ना, तो दो दो तो जी फाइल नहीं हो सकते ना। कंफ्यूजन हो जाएगी इसलिए जो बाकी 12 सीखे होते हैं उनमें फाइल नहीं होता, वो साथ ही लगा होता है, उनमें इसम जाहिर फाइल नहीं आ सकता। हम्म तो यही बात यहाँ पे ये समझा रहे हैं अभी, ठीक है। अच्छा सही ये है। कह रहे हैं जहाबू, जहाबू में क्या है, द फाइल कैन बी प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन भी फाइल आ सकता है। तो इसमें इसमें क्या फाइल है, दे वेंट वाह में वो वाह फाइल है, वाह और इसमें क्या फाइल है, इसमें ता है। ता है। द जी फाइल इज ता, द फाइल हम्म इज वाओ। अभी हम्म कोई होम और वो ना बोले, ठीक है। द सही फाइल इज वाओ, द फाइल इज ता, इसमें हम्म क्या है, द फाइल इज ना हम्म ना। ये हम्म जो ना आ रही है ना, ये, हम्म हाँ, ये 14वां सीगा है ये ना। 14वां सीगा है, ये जी 7वां सीगा है, ये तीसरा जी सीगा है। तो जी पहला और दूसरा सीगा जो होता है उसमें भी हम्म फाइल जमीर हो सकता है, पहले और दूसरे में भी हो सकता है, पूरी गर्दान में जमीर फाइल हो सकती है। लेकिन पहले दो सीगों में क्या होता है, अल्लाह हम्म ताला ने हमें चॉइस दी है कि आप उसमें इसम जाहिर फाइल भी लगा सकते हो। हम्म अगर जरूरत हो तो लगा सकते हो, ना हम्म जरूरत हो तो ना लगाओ। हम्म लेकिन बाकियों में तुम्हें जरूरत नहीं है कि उनमें हम्म साथ ही लगा हुआ है। हम्म, तो उसमें अगर लगाओगे तो वो दो दो फाइल हो जाएंगे, तो बुरे लगेंगे। जी मसलन आप कहती हैं जहाबत, और जहाबत में तो मरियम चलेगा, ठीक है, जहाबा में बिलालन भी चलेगा। लेकिन अगर आप जहाबू में जाके औलाद अल औलादू लगा देती हैं, या जहाबता में आप आगे हामिदुन लगा देते हैं, तो वो हम्म गलत हो जाएगा, हम्म क्योंकि इसमें भी दो फाइल हो जाएंगे। और फिर जहाबता में ऑलरेडी फाइल है, फिर एक और आप फाइल लगा, इसी तरह जहाबना में ऑलरेडी फाइल है, और आप उसके बाद भी एक लगा देते हैं औलादू या कुछ भी लगा देते हैं, कोई इसम जाहिर लगा देते हैं, वो लगेगा हम्म ही नहीं। हम्म हाँ, मफूल बन के आ सकता है आगे, मफूल समझ बन के आपका आगे इसम जाहिर आ सकता है, गई ठीक है। लेकिन फाइल बन के नहीं आ सकता, क्योंकि फाइल तो ऑलरेडी जमीर की शक्ल में मौजूद है ना 12 सीगों में। हम्म अब यहाँ पे ये वही बात बता रहे हैं आप, नोट दैट इन, पढ़े। note that in the students went. The verb zahaba has no wow at the end because zahabu means they went. And if they say zahabut talabu, it means the students went. अब ये यहाँ तो पे क्या हो गया, मुश्किल दे वेंट और द है। स्टूडेंट वेंट, है ना। तो दो Yeah. दो चीजें हो गई ना। तो इसलिए कभी भी 12 सीगों में आपने इसम आगे फाइल नहीं लगाना है, इसम जाहिर। हम्म मफूल लगा सकते हैं आप, तुलाबा लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं लगा सकते। अच्छा फाइल आप एक दोबारा से फाइल पे दमा लाएंगे ना, जाहिर है, तो वो तो नहीं लगा सकते, दो दमे लाएंगे या एक दमा लाएंगे। तो क्या तर्जुमा होगा, दे द स्टूडेंट वेंट, दे भी फाइल है और द स्टूडेंट भी फाइल है, तो ये रॉन्ग है। दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज देयर कैन नॉट बी टू फाइल्स फॉर अवर। समझ आइए, दो फाइल नहीं हो सकते, सही है। हाँ दो जी फाइल नहीं हो सकते आप, कि जमीर भी हो और नॉन भी हो। हम्म दो इस तरह से दो नहीं हो सकते कि एक जमीर भी फाइल बन रही है और एक जो है वो नाउन भी बन रहा है। अच्छा, उसके बाद आगे पढ़ें। But we can say at-tullabu zahabu. हम्म Here at-tullabu is mubtada and the sentence zahabu they went is khabar. I see. अब इस तरह कह सकते हैं, तो switch कर हाँ switch हो गया स्विच करके कह सकते हैं, यानी जुमला हाँ इस्मिया में कह सकते हैं।
جملہ اسمیہ ہاں میں آپ طلابو کو پہلے لائیں گے، یہاں پہ ہاں طلابو ہاں بعد میں ہے نا، تو اس کو جی آپ پہلے ہاں لے آئیں، اس کو بعد میں لے جائیں، تو یہ یہاں پہ آئے گا تو مبتدا بن جائے گا نا، طلابو یہاں پہ آئے گا شروع میں تو پھر جملہ اسمیہ بنے گا نا، جی تو یہ آپ کا کیا بن جائے گا، مبتدا بن جائے گا، اور ذہبو کیا بن جائے گا آگے، اس کی خبر ذہبو خبر بن جائے گا، تو اس ہوں طریقے سے کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جی اس طریقے سے نہیں کہہ سکتے، تو یہ آپ لوگوں کو مزید میں نے کہا تھوڑا پکا ہو جائے، پختہ ہو جائے، اس لیے میں پڑھا رہی ہوں۔ ہاں صحیح اچھا، تھینک یو دے وینٹ اس خبر، تو یہ پورا جملہ فعلیہ بن کے خبر بن رہی ہے، اس میں کیا کیا ہے، فعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے، مفعول رائٹ کی تو ضرورت نہیں ہے، اگر مفعول کی ضرورت ہو تو مفعول بھی آ جاتا، لیکن مفعول کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ کون سا فعل ہے جس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے، لازم لازم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ متعدی ہوتا تو آگے مفعول بھی آ رہا ہوتا، لیکن اس کو ضرورت نہیں تھی، تو طلاب ذهبوا، اس کا ترجمہ کیا ہوگا، the student went، وینٹ وینٹ یہ خبر ہے اور وہ مبتدا ہے، اب یہ جملہ اسمیہ بنے گا، فعلیہ نہیں بنے گا، جی ٹھیک ہے، کیونکہ اسم سے جی شروع ہو رہا ہے، یہ مبتدا ہے، اور مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ بنتے ہیں، فعلیہ نہیں بنتے، اس ٹھیک کی ہے، اس کی خبر کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، اگر کوئی پوچھے they went سو پھر وہ مفعول کیا آ جائے گا آگے ہاں رائٹ ہاں ہاں، وہ اگر ضرورت، اس کی تو ضرورت، صحابہ کی تو ضرورت نہیں ہوتی، بس وہ گئے، کہاں گئے وہ بعد میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے، ابھی ضرور اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، تو صحیح صحیح میں سر کی بیٹھ گئی، چلیں، ہاں تو پڑھوں آگے سارے جی، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، دا سیم آلسو اپلائز ٹو تھرڈ پرسن فیمینائن، کیا کہہ رہے ہیں، the same also applies to third person feminine. It's for example ہاں اس کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، یا تو آپ کا اسم ظاہر فاعل آئے گا، yeah یا پھر کیا ہوگا، کراس کر کے آگے چلا جائیں گے ہاں جملہ اسمیہ بنا دیں گے، ٹھیک ہے، ابھی اس میں کیا ہے آپ کا، کہ جب اسم ظاہر فاعل تھا تو یہ رول یاد رکھنا ہے کہ فعل ہمیشہ واحد آئے گا، صحیح یہاں بھی تو ذہبہ آیا تھا نا طلاب کے جی ساتھ، جی آیا تھا نا، جی تو یہ اسم ظاہر فاعل جب بھی آئے گا ہوں فعل واحد آئے گا، اور یہاں پہ بھی بنات آ رہا ہے تو اس کے ساتھ ذہبات آ رہا ہے، جی دا چوتھا گرلز وینٹ، جی اور جب اس کو اس صورت میں تو ہم جو ہے ٹھیک ہے، اور اس کو ہم اس طرح نہیں لا سکتے کہ ہم کہیں کہ ذہبنا البناتو، یہ نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم ذہبنا البناتو نہیں کہہ سکتے، جیسے ذہبو یہ والا نہیں کہہ سکتے تھے نا، ذہبت یہ والا نہیں کہہ سکتے تھے نا، یہ رونگ تھا نا، ذہبت طلابو یہ رونگ تھا نا، جس جی طرح یہ نہیں کہہ سکتے، اسی طرح آپ یہاں پر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ذہبنا البناتو، کیوں نہیں کہہ سکتے، ذهبنا پھر وہ ہے نا 14واں سیگا آلریڈی اس میں فائل موجود ہے نا، آلریڈی موجود ہے، تو ہم جی اسم ظاہر فاعل نہیں، لیکن ہاں نہیں ایسے لا سکتے ایسے کہہ سکتے ہیں، ایسے کہہ سکتے ہیں، جی کیونکہ اس کا فائل ہم یوز نہیں کر رہے ابھی، ٹھیک ہے، تو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں، جی اور یہ صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے، یہ کیوں صحیح ہے، جملہ اسمیہ ہے نا اس لیے وہ کہہ جملہ سکتے اسمیہ ہے تو ہاں، تو وہ آ سکتا ہے، لیکن آپ ذہبنا البناتو نہیں کہہ سکتے کہ ذہبنا کے بعد البناتو لکھیں، اس کے لیے آپ کو ذہبت البناتو ہی لکھنا ہوگا، جی ذہبنا البناتو کیوں غلط ہے، ہم نے بتایا ہے نا، ابھی کیوں غلط ہے بتائیے آپ، کیوں دیکھو اس غلط کا ہے، فعل ظاہر آ رہا ہے نا، وہ 14 سیگے میں فعل ظاہر نہیں آتا، یہ چوتھا سیگا نہیں ہے، 14 سیگا ہے نا 14 بھی نہیں ہے، 14 بھی نہیں ہے، اور یہ والا تو سوری یہ ہوگا سکس ہاں 6 سکس نمبر ہاں 6 سیگا ہاں 6 سیگا ہے نا، مؤنث کا نون والا، تو اس میں آپ ذہبنا آلریڈی اس میں ضمیر ہننا موجود ہے نا، یہ نون ضمیر ہی ہے نا، نون تو زمین ہونا تو نہیں کہہ سکتے، نون ضمیر ہے، فائل ہے اس میں، تو ہم البناتو ایک اور فائل نہیں لگا سکتے، غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے،
تو ہم right. اس طرح کہیں گے ذہبت البناتو. جی ٹھیک ہے، جی پہلے اور چوتھے سیغے میں ہم اسم زائد فاعل لائیں گے بس. اور اسی طرح البناتو ذہبنا بھی کہہ سکتے ہیں ہم، کیونکہ یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. لیکن اس طرح ذہبنا البناتو نہیں کہہ سکتے، یہ غلط ہے. سمجھ آئیے، یہ البناتو پیچھے تو آ سکتا ہے لیکن آگے نہیں آ سکتا، کیونکہ اس میں فائل پہلے سے موجود ہے. جی تو اگر میں نے آپ کو سمجھا لیا تو اس کا مطلب ہے سب کو سمجھا لیا میں. یس. اچھا آگے، لرن دس رول. Learn this nominal sentence. الطلاب ذهبوا ذهبت الطلاب. ہاں Nominal sentence and verbal sentence. دیکھنا فرق کیا پڑا کہ جہاں پہ جب ہم نے وربل سینٹینس بنایا جملہ فعلیہ، تو یہاں پر ہم ذہبو کے بجائے ذہبا لائیں جب اس کو فاعل جی اسم ظاہر بنایا، جی اور جب پہلا مبتدا صیغہ. بنایا تو پھر اس کے مطابق لائے. جب مبتدا بنائیں گے تو اس کے مطابق لانا ضروری ہے. یہاں پہ آپ ذہبا نہیں لا سکتے، ذہبا بھی نہیں لا سکتے، ذہب تم بھی نہیں لا سکتے. کیوں نہیں لا سکتے یہاں پہ؟ یہی کیوں لا رہے ہیں؟ یہی Because والا مذکر جمع مذکر لائیں گے نا اس ہاں، وقت، تو کیونکہ اس یہ لیے جمع ذهبوا. مذکر ہے، یہ جمع مذکر ہے، تو ہم نے سیگا بھی جمع مذکر ہے، ذہبنا نہیں لا سکتے. جی سمجھ آئیے، کیونکہ وہ جی مؤنث جمع ہے. جی ٹھیک ہے، وہ جمع مؤنث ہے، ہمیں جمع، یہ مذکر ہے تو ہمیں بھی مذکر لانا ہے، یہ جمع ہے تو یہ ہمیں بھی لانا ہے. جی ٹھیک ہے، تو دو چیزوں میں عدد اور جنس میں آپ نے مطابقت لانی ہے، جی مبتدا اور خبر میں. جب خبر آپ کی جملہ فعلیہ بنتی ہے تو ان میں عدد اور جنس میں دونوں عدد کیا ہے؟ جمع ہے. ٹھیک ہے، دونوں جمع ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ جنس، یہ بھی مذکر ہے یہ بھی مذکر ہے. دو چیزوں میں عدد اور جنس، مبتدا اور خبر جو ہوتے ہیں وہ عدد اور جنس میں کیا ہوتے ہیں؟ وہ ان کا مطابقت کرتے ایکول ہونا ہیں. ضروری ہے. جی پہلے میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ 3 چیزوں میں مطابقت ہوگی اور ایک میں نہیں ہوگی نا. اعراب میں بھی مطابقت ہوگی، ٹھیک ہے. اس کے بعد کس میں؟ جینڈر میں بھی مطابقت ہے، جنس میں بھی ہوگی، اور وسعت میں نہیں ہوگی. وسعت میں اگر دونوں معرفہ ہو جائیں گے تو جملہ اسمیہ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، لیکن آج میں نے آپ کو کیا سمجھایا ہے کہ عدد اور جنس میں مطابقت ضروری ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے عدد اور جنس؟ اس لیے کہ مبتدا اور خبر اس طرح بھی تو آ سکتے ہیں نا. اب ان میں وسعت اور وہ کیسے دیکھیں گے بتائیں؟ اعراب کو بھی کیسے دیکھیں گے؟ تو ہم یہ دو چیزوں میں پھر یہ مطابقت ضروری سمجھتے ہیں، یہ دو چیزوں میں مطابقت ہو، عدد اور، اس کو ہر چیز میں چاہیے. آپ کہیں بھی جائیں نا، یہ دو چیزیں تو ان میں مطابقت ضروری ہوتی ہے. صحیح ہے، عدد اور جنس. عدد نمبر ہوتے ہیں، تو یہ نمبر ہے، جمع ہے، جی اور یہ بھی جمع ہے کہ نہیں ہے؟ جی اور جینڈر میں یہ مذکر ہے یہ بھی مذکر ہے. جی یہاں سے جب بنایا ہم نے جملہ فعلیہ بنایا تو یہ کیا تھا؟ اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے، جملہ فعلیہ میں ضرورت نہیں ہے، اس میں ضرورت ہے. اس میں ضرورت نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ جمع ہے اور یہ واحد آ گیا، تو نمبر میں کہاں مطابقت ہے بتائیں؟ جی اس میں نہیں ہے نا، یہ تو واحد ہے، اس میں ہوگا، یہ واحد کا صیغہ ہے اور یہ ہے، تو اس میں ضرورت نہیں، جملہ اسمیہ میں ضروری ہے عدد اور جنس مطابقت. صحیح. جیسے یہاں پہ یہ مؤنث ہو گیا تو یہ بھی مؤنث ہو گیا. جی ٹھیک ہے، اور یہ جمع ہو گیا اور یہ بھی جمع ہو گیا. لیکن اس میں آپ دیکھیں تو یہ جمع ہے اور یہ واحد کا صیغہ ہے، جی مؤنث. واحد مؤنث کا ہے نا. یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ والا. چوتھا. اور یہ والا، یہ چھٹا. یہ چھٹا ہے. ٹھیک ہے، اور باقی اگر آپ نے فائل بنانا ہے تو اس کو یہاں لائیں گے، فعل کے بعد فعل اسم ظاہر کے طور پر آئے گا تو واحد آئے گی. یہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث آئے گا. اور اگر جملہ اسمیہ بنائیں گے تو طالبات کو پہلے لا سکتے ہیں، یہ لا سکتے ہیں. لیکن اس طرح لانا غلط ہے، یہ میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ اس طرح جی لاؤ گے تو یہ 2 فائل ہو جائیں گے اور یہ غلط ہو جائے گا. ایک فائل یہاں ہے اور ایک فائل یہاں، یہ غلط طریقہ. اچھا آگے پڑھیں. دا مرفوع، the دا مرفوع نہیں، the مفعول مفعول مفعول. به. مفعول به the object. the مفعول به is منصوب. ہاں، یہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. مرفوع اسم کو آپ مفعول نہیں بنا سکتے، اس کو فاعل ہی بنائیں گے، اور منصوب اسم کو آپ فاعل نہیں بنا سکتے، اس کو مفعول ہی بنائیں گے.
ٹھیک ہے. right. اگر کسی پہ زبر آ رہی ہے اور اس کے پیچھے فعل آ رہا ہے تو آپ اس کو فاعل نہیں بنا سکتے. یہ غلطیاں نہیں کرنی، اس کو مفعول ہی بنانا ہے. چاہے وہ منصوب ضمیر آ رہی ہے یا منصوب اسم آ رہا ہے، وہ مفعول ہی بنے گا. مفعول ضمیر کا مطلب ہے لیفٹ ہینڈ میں جو آپ کی چھوٹی چھوٹی ضمیریں ہوتی ہیں وہ منصوب ضمیریں ہوتی ہیں. وہ کیا بنتی ہیں؟ مفعول بنتی ہیں. ہو اور ہا اور کا اور کما اور وہ سب. اور سیدھے ہاتھ کی جو ضمیریں ہوتی ہیں وہ فاعل بنتی ہیں. یہ سیدھے ہاتھ کی ضمیریں جو فاعل بن رہی ہیں. ٹھیک ہے. یہ ذہبنا بھی یہ سیدھے ہاتھ کی ضمیریں ہیں نا کہ نہیں ہے؟ بتائیں. جی یہ ہوم ہے، یہ ہننا ہے، جی یہ تو ضمیریں سیدھے ہاتھ کی ہیں نا، مرفوع ہے نا، تو اس لیے تو جی فاعل بن رہی ہے. مفعول اور صحیح یہ جو منصوب ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. چھوٹی یہ والی والی اب سیدھی ہاتھ میں تو نہیں آتی نا، یہ نہیں سیدھے ہاتھ میں تو نہیں آتی نا. یہ کا Right. کما کم یہ تو الٹے ہاتھ میں آتی ہیں، تو یہ مفعول جی بنتی. جی اور یہ اپنی اصلی شکل میں آپ کو نظر آئیں گی جب مفعول بنے گی. تو جی جو ضمیر آپ کو اصلی شکل میں نظر آ جائے نا، یہ اصلی میں نہیں نظر آ رہی، یہ صحیح اصلی میں نظر نہیں آ رہی ہے، یہ ہونا نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو. تو یہ والی فائل ہوتی ہیں، اور جو اصلی نظر آ رہی ہیں پوری پوری نظر آ رہی ہیں مفعول بنتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو پکا کریں گے ماضی میں سارے، یہی رول مضارع میں بھی ہوں گے. مضارع میں بھی ان کو پکا کر لے تو انشاءاللہ. اب دیکھیں فتح الولد البابا، یہ کیا بنے گا اور یہ کیا بنے گا بتائیں. فتح فعل ولد فاعل بابا is مفعول مفعول ہے کیونکہ مفعول یہ به منصوب ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے. مفعول تو کلو فائلن، جو بھی فائل ہوگا، کلو فائل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کلو فائلن ہر مرفوع. فاعل ہر فائل فاعل مضاف الیہ بن گیا نا. جی ایوری ہاں ایوری all فائل. all file ہاں آل فائل جو ہوں گے وہ مرفوع ہوں گے، مرفوع اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوں گے. چاہے وہ نائب فائل ہو چاہے وہ فائل ہو، وہ سب مرفوع ہی ہوں گے. اور جی کلو مفعولن، اب کلو مفعولن لکھ لیں. ٹھیک ہے. یہ کیا ہوگا؟ کلو مفعولن، ان کو منصوب مفعولن. منصوب یہ مرکب اضافی بن گیا، اور مرکب اضافی بن کے کیا بن گیا؟ مبتدا بن گیا. اور اس کی خبر کیا آگے؟ خبر کیا ہے؟ منصوب. مفعول منصوب 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 خبر بن گئی. یہ پورا جملہ ہے. جی ہر مفعول منصوب ہوتا ہے، چاہے وہ ضمیر ہو چاہے وہ حرکت کے ساتھ منصوب ہو رہا ہو، چاہے وہ اینی ساؤنڈ کے ساتھ منصوب ہو رہا ہو یا اینا ساؤنڈ کے ساتھ منصوب ہو رہا ہو. ٹھیک ہے. چاہے آتن آ رہا ہو، آتن بھی تو منصوب ہوتا ہے نا. تو ہر ایک کی ڈفرنٹ حالت ہوتی ہے. چاہے دو زبر آ رہے ہوں، جو بھی آ رہا ہے وہ منصوب ہوگا تو مفعول ہی بنے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ وہی والی کے پیچھے کیا ہوگا؟ فعل ضرور ہوگا. ٹھیک ہے. اگر ویسے ہی منصوب اور مرفوع اسم آ رہے ہیں تو وہ تو فعل کے بغیر تو نہیں فاعل اور مفعول بنے گے نا. فعل کا ہونا ضروری ہے. فعل کا فاعل ہوتا ہے اور فعل کا ہی مفعول ہوتا ہے. یہ آپس میں ان کا تعلق ہے، جیسے مبتدا خبر کا آپس میں تعلق ہے. کیا بات سمجھ میں آئی؟ مطلب فعل جب آئے گا تو اس کا فاعل بھی ہوگا مفعول بھی ہوگا. ورنہ اس کے نہیں بعد ہوگی. ورنہ کوئی اسم مرفوع آئے گا یا منصوب آئے گا تو وہ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. جی یہ باتیں کوئی نہیں بتاتا ہے. میں یہ اس کو چھوڑ بھی سکتی تھی، لیکن میں چاہتی ہوں آپ اندر کی چیزوں کو سمجھیں. جی جی ٹھیک ہے. جب تک نہیں سمجھیں گی اوپر بلڈنگ نہیں بنے گی صحیح. جی تو ہیئر البابا از دا مفعولن بھی ہی. کیوں مفعولن بھی ہی البابا؟ مفعول به بیکاز منصوب ہو رہا ہے نا. منصوب ہو رہا ہے اور پیچھے منصوب فعل ہو بھی رہا آ رہا ہے. پیچھے فعل فعل بھی بھی آ رہا ہے. ہاں پیچھے اگر فعل فعل بھی کو ہٹا دیں تو یہ تو مفعول نہیں بنے گا، نہیں جی یہ تو منصوب اسم بنے گا خالی. اور جی یہ بھی فاعل بھی نہیں بنے گا، یہ بھی مرفوع اسم بنے گا خالی. ٹھیک جی ہے. جی ہاں. ابھی کس کا مائک کھلا ہوا ہے؟ بند کریں. آئے ہائے پوری کلاس خراب کرتے ہیں. چلیں. ہیئر آر سم مور ایگزامپلس. جی اب اس میں دیکھیں. رائٹ حامدن
I saw Hamid. अभी ये क्लास से आउट हुई। शाहीन पीरजादा का माइक खुला हुआ है। Oh, that's sure. कोई मे भी अभी लॉगिन हुआ, पता नहीं क्या हुआ। नहीं वही थी। शाहीन पीरजादा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। अच्छा, और आई तू हामिदन। अब इसमें मुझे बताएं फेल फाइल मफूल किधर है? फाइल तो बाहर है, नो नो मफूल है वो हामिदन इज मफूल। और रायतू यहाँ से शुरू करते हैं। फाइल इज रायतू, फाइल उसी के रायतू है। अंदर फेल रायतू है, उसी के अंदर है फाइल। रा फाइल फेल है और तू जमीर है, ठीक है। राई भी कह सकते हैं, जो भी है, राई तू कह लें, लेकिन कुछ कहें तो सही ना, पहले फेल बताएं फिर फाइल बताएं फिर मफूल बताएं, ठीक है ना? जी। और ये कौन तेरवा सीखा है या 13वां सीगा है, हाँ। जी। 13वां तो सीगा है और इसमें उसके फाइल अंदर ही है, साथ ही अंदर अंदर ही नहीं है, साथ ही लगा हुआ है। साथ ही लगा हुआ। अंदर तो नहीं है ना? नहीं। साथ लगा हुआ है। ये 12 सीगों में साथ लगा होता है, और ये फाइल और ये मफूल है। हम्म। इसमें बताएं। इसमें बाहिर है अलमुद्दत हाँ, फाइल बाहर अलमुदीर। है, क्योंकि फाइल बाहर भी आ सकता है ना इसमें। जी। चौथे अलमुदीर सीगे में फाइल बाहर है। या दम्मे से भी पता चल जाता है हाँ, कि दम्मे बाहिर है। जी हाँ, लेकिन पहला और जी चौथा सीगा होना जरूरी है, जी, जरूरी है। जी जी। वरना ये फाइल नहीं आ चौथा सीखा। फाइल जाहिर नहीं आ सकता। जी। अगर ये यहाँ चौथा सालतू कर देंगी, सालतू हम्म कर देंगी, जैसे यहाँ पे रायतू है, तो आप फिर इसको नहीं नहीं आ ला सकता, सकते, फिर नहीं नहीं आ ला सकता। सकता। तो पहला और चौथा सीगा आएगा। अब ये मोनस था तो ये भी मोनस है, मानस है। जी। ठीक है। जैनब। अब आगे जैनबा क्या बनेगा? मफूल मफूल, क्योंकि जबर है। जबर और है। एक जबर क्यों है? दो जबर आए थे यहाँ पे तो। यहाँ बिकॉज औरतों के उसमें एक ही जबर आता है। एक ही जबर आती है, एक ही पेश आती है, एक जबर आती है, जेर आती ही नहीं, जी ठीक है। जी जी। शरीबा। शरीबर हम्म, रजुलुल मा। हाँ, तो क्या हुआ? शरीबा इज फेल, हम्म, और उसका फाइल रजुलु है, बाहर है। हम्म, अलमा इज मफूल, मफूल है। ये फाइल बाहर है, और ये सीगा कौन सा है? पहला। पहला वाला, शरीबा। तो हम्म अभी आपको बताएंगे ये कि जो फिल माजी होता है उसमें पहले लेटर पे भी जबर आ सकती है और आखिरी पे भी आ सकती है, बल्कि आती है, हम्म लाजिम आती है। हम्म। माजी फेल फाअला है ना? तो फाल। हाँ, तो उसमें पहले लेटर पे लाजम जबर आएगी, आखिरी पे भी आएगी, ठीक है। हम्म और जो मिडल वाला होता है उस पे जबर भी आ सकती है, जेर भी, जैसे यहाँ पे जेर आ गई है, ठीक है। ये तो आपका पेश भी आ ये सकता, तो पक्का पक्का है ना, और पेश भी आ सकती है। पेश भी आ सकता। करूमा में पेश आ जाती, तो ये हम्म आपकी जेर आ गई। तो ये भी आपका फिल माजी ही है। जब भी आप देखें पहले पे जबर है, आखिरी पे जबर है, मिडल वाली कुछ भी हरकत हो, वो फिल माजी है, ठीक है। हम्म। अब जी शरीबा और रजुलू, तो ये क्या हो गया? फाइल हो हम्म, गया। तो फाइल के मुताबिक फेल लाए हैं ना, जी। मुजक्कर लाए हैं और वाहिद लाए हैं। मुज़क्कर वाहिद ला। अलमा हाँ जी। मफूल मफूल है, हम्म ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे क्या? तनवीन नहीं आ रही तो उसको पेश के साथ मिला देंगे। जी। अगर यहाँ भी सुकून हो ना, तो फिर हम जेर के हम्म साथ मिलाते हैं, जैसे यहाँ भी सुकून है, यहाँ भी सुकून है, हम्म। तो ये जेर के साथ दिल। मिलाया, ठीक है। लेकिन दिल। यहाँ पे सुकून हो और यहाँ पे सुकून हो और यहाँ पे जो भी हरकत हो, तो हम उससे मिला दें। इस बात को हम्म। याद रखें, ठीक है। सही। कि जी आपने जी। अगर हरकत हरकत लगी है तो फिर जेर नहीं देनी, फिर उसी से हम्म। मिलाना। फिर सही। सालल वलदू उम्मा, यहाँ पे तो मिलाने की जरूरत ही नहीं ना। राइट। उम्मा हु। अब हम्म। इसमें बताएं फेल क्या है और फाइल क्या है, मफूल क्या है? इसमें फेल जो है साला, हम्म, ये अंदर है फाइल। अंदर ही है। नो, फाइल बाहर है, सॉरी अलवलदु इस फाइल। देखें, जब भी पहला चौथा सीखे देखें ना, तो आगे नजर मारें, जी जी आगे जी नजर मारें। कभी फाइल बिल्कुल साथ लगा होता है इधर ही, और कभी कभी आगे भी जाके होता है। जी। तो आपको पूरे जुमले में आगे नजर मारनी है कि कोई जब पहला और चौथा सिगा आता है।
کہ آگے کوئی فائل اسم ظاہر تو نہیں آ رہا جملے میں. اگر نہیں آ رہا تو پھر ضمیر کو بنا لے. تو یہاں پہ آپ کو نظر فائل ہے اور یہاں مفعول دونوں کیا. فائل ہے، ہاں مفعول نہیں ہے اس میں. اچھا دونوں فائل ہے، مفعول ہے ہی نہیں. تو امہ اس پہ بھی وہ لگا ہوا ہے پیش. اچھا یہ وہ ضرور. اچھا وہ منصرف ہے اس لیے. اچھا امہ پہ ہوگا. اچھا ہو کو نہیں دیکھیں گے. اچھا یہ مضاف مضاف الیہ ہے نا. اچھا دیکھو اگر ون ہی ورڈ ہوتا نا، جیسے یہ ون ورڈ تھا، یہ ون ورڈ تھا، یہ ون ورڈ تھا، مفرد تھا نا، تب تو یہ حرکت دیکھیں گے نا اس کے اوپر. لیکن جب دو ورڈ ہیں مضاف اور مضاف الیہ ہے تو مضاف کی حرکت دیکھیں گے نا. جی مفعول. ہاں مضاف پہ اگر پیش آئے گی تو وہ فائل بن یہ جائے گا، چیز. مضاف پہ زبر آئے گی تو وہ مفعول بن جائے گا. ہاں سو ایکچولی جو ہے وہ مجرور ہے ایکچولی. ہو مجرور ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہو رہا ہے. یہ مداخلے ہو تو رہا ہے. ضمیر ضروری نہیں ہوتی کہ وہ زیر لے. ٹھیک ہے. I see. وہ زیر اوکے. تب لیتی ہے جب اس کے پیچھے زیر ہوتی ہے یا پیچھے یا ساکنہ ہوتی ہے، تب وہ زیر لیتی ہے. اچھا کسی ہاں. وجہ سے لیتی ہے وہ، جی ایسے ہی یہ نہیں تھوڑا لے مائنڈ. لیتی. جی تو یہ آپ نے تھوڑا پڑھا مائنڈ. نہیں کہ یا ہو ضمیر سے پہلے زبر ہو تو اس پہ پیش ہی آتی ہے. پیچھے پیش ہو اچھا یا بھول گئی. پیچھے. آپ نے بتایا تھا. ہاں بتایا تھا یہ. تو بھول اس گئی ضمیر میں. کو نہیں دیکھنا آپ نے، مضاف کو دیکھنا، مضاف پہ کیا اعراب آ رہا ہے. اگر وہ صحیح منصوب ہے تو وہ مفعول بنے گا نا. صحیح. یہ یس. تو یہ تو مجرور ہے، یہ آپ کا منصوب ہے تو یہ مفعول بن جائے گا. تو سوچا کریں، دوڑ نہ لگایا کریں کہ یہ ایک ہی ورڈ تھوڑی ہے، اس میں دو دو ہے. ورڈ صحیح. ہیں، ایک ہو ہے اور ایک امہ ہے. تو رائٹ. ترجمہ کیا ہوگا؟ سوال کیا لڑکے نے کس سے؟ اس کی مدر سے. اپنی ماں سے. اپنی پاس. ہز اپنی ماں. مدر. his ہز mother. مدر. ٹھیک ہے نا. ہز مدر. تو ہز مدر کیا ہے؟ دو ورڈ ہے، ایک ہوں ہز ہوں ہے اور ایک مدر ہے. تو مدر کیا ہے؟ وہ مفعول ہے، اور ہز کیا ہے؟ وہ مجرور ہے. یہ والا صحیح ہے. تو سوچا کریں، آگے پڑھیں. اس میں ہم آپ کو بتا بھی رہے ہیں. چلو پڑھو آگے. Note that in the last example, the maf'ul bihi is umma, and so it takes the a ending, and pronoun who is not part of it. Umma, who. Here are some more examples of this kind. نیچے اور ایگزامپلس بھی آ رہی ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مفعول کا پارٹ نہیں ہے، یہ مجرور ہے. مفعول تو منصوب ہوتا ہے نا. تو یہ آپ کا منصوب ہے، یہ جو ہے یہ آپ کا مفعول ہے امہ، اس کو مفعول کہیں گے. اور یہ والا یہ مجرور ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، یہ صحیح طریقہ ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں دونوں کو ملا کے بھی مفعول بنا دیتے ہیں نا. لیکن اعراب کس کا دیکھتے ہیں؟ مضاف کا دیکھتے ہیں ہمیشہ، کہ وہ زبر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. اگر زبر نہیں آ رہی تو پھر مفعول نہیں بنے گا، پھر فاعل بنے گا. صحیح ہے. اچھا السلام علیکم. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا پھر مرکب اضافی جو ہے وہ مفعول بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے، دونوں کو ملا کا کے مطلب یہ ہے. ہاں جیسے ہم مبتدا بھی بنا لیتے ہیں نا، شروع میں آئے تو مبتدا بنا لیتے ہیں، امہ مریضۃ ہے نا. جی اس کی امی بیمار ہیں تو مبتدا بھی بنا سکتے ہیں. تو اس میں مبتدا کیا بنے گا؟ یہ تو نہیں بنے گا نا. یا تو اس کو ٹوٹل کو بنا لیں، یا پھر اس کو مبتدا بنائیں، اس کو مضاف الیہ بنائیں. اس کو مبتدا بنائیں، امو کو امو ہوگا نا اس وقت، تو امہ تو نہیں ہوگا نا جب مبتدا بنے گا، امو وہ ہوگا. لیکن یہاں پہ امہ آ رہا ہے کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے. تو ہم ان دونوں کو ملا کے بھی بنا سکتے ہیں اور الگ الگ بھی بنا سکتے ہیں. تو بہتر ہے آپ ان کو ملا کے بنا لیں، ابھی آپ کے لیے یہی صحیح ہے. لیکن آپ کو سمجھنا چاہیے، جیسے وہ کہہ رہے ہیں نا یہاں پہ کہ امہ جو ہے وہی مفعول ہے، اینڈ سو اٹ ٹیکس the ending and the pronoun who is not part of it. مفعول کا پارٹ نہیں ہے ہو. یہ جو آپ کو بات سمجھنی ہے کہ پارٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ مجرور ہے، مجرور تو مفعول نہیں ہوتا نا. لیکن ہم کر سکتے ہیں کہ دونوں کو ملا کے مفعول بنا دیں. جیسے مبتدا تو صرف مرفوع اسم ہوتا ہے نا، تو ہم مضاف اور مضاف الیہ دونوں کو ملا کے مبتدا بنا دیتے ہیں نا. تو ہمارا دیسی طریقہ تو یہی ہے، پینڈو والا، کہ پینڈو طریقے میں ہم دونوں کو ملا کے بنا. لیکن جو کلاسک طریقہ ہے جس میں یہ کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو از ناٹ پارٹ آف اٹ. لسان القرآن کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں کو ملا کے بنا دیں. تو آپ نے تو دونوں چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، تو آپ کو دونوں سمجھ آنی چاہیے. صحیح ہے.
Here are some more example of this kind. अब इसमें करें फाइल मफूल ढूंढें सब कुछ. रायतु बैतका हम्म, इसमें इसमें उस ये 14वां सीगा हम्म, तो उसके अंदर ही है. हम्म. 14वां में तो ना ताता, जमीर नहीं आती. हाँ ना आती है ना. हाँ तो ये क्या है, तू है ये तो. रायतु 13th है ये। 14वां, सॉरी 14वां नहीं है ये सीगा. I saw, yeah. रायतु बैतु का हम्म, 13वां बैत, हाँ 13वां, I mean to say 13वां, हाँ अना. बैत का मफूल है. ये पूरा मफूल है और ये क्या है, फाइल है. फाइल है. पेंडू तरीका. जी. सही है. रअयतु ये फेल है और ये फाइल है और ये पूरा मफूल है. मफूल है. ठीक है. जी लेकिन जी. असल मफूल जिस पे जबर है वो ही है. ये तो मजरूर है ना. ये क्यों मजरूर है? जी मुदाफ अलैह की वजह से. हाँ ये मुदाफिल है तो ये मजरूर है, लेकिन हम दोनों को मिला के भी मफूल कह सकते हैं. जी सही है. जी. अच्छा अगली मिसाल देखें. फताहत तालिबु किताबु होगा अभी यहाँ पे. अभी उन्होंने नहीं लगाया, उन्होंने कहा हो। पीछे जबर लगा दिए कि जबर देख के खुद ही दर्ज के ऊपर हरकत लग. किताबहु आएगा यहाँ पे. हो आएगा, बल्कि उल्टी हु पेश आएगा. आती है, लेकिन इसमें जी. नहीं लगाते. ये कुरान में लगाते हैं, इसमें नहीं लगाते. इसमें आप जो मर्जी लगाएं, उल्टी लगाएं सीधी लगाएं. हाँ हाँ तो हाँ. जुमले बना रहे हैं ना, तो उल्टी लगाने जी. की जरूरत नहीं है. कुरान में आपको उल्टी मिलेगी. जब पीछे जबर आएगा या पीछे पेश आएगा तो उल्टी मिलेगी. हाँ हाँ हाँ. तो किताबा ही नहीं हो सकता, जी. किताबा हु होगा. पढ़ा भी नहीं जाएगा सही तरह. हाँ किताबा. ये पढ़ने जी. के लिए तो चेंज करते हैं. किताबहु. जब हु पढ़ना मुश्किल होता है तो ही कर लेते हैं. अपनी मर्जी है. पीछे देखेंगे या साकिन वाली आ रही है तो जेर कर लेंगे, या बी बा जेर वाली आ रही है तो बी ही कर लेंगे. जी. ठीक है. तो अब आपका क्या होगा, ये मफूल ये फाइल और ये फिल. तो मतलब क्या हुआ? द स्टूडेंट ने किताब खोली. अपनी किताब खोली. अपनी किताब खोली हु की वजह से. अगर सिर्फ किताबा होता ना या किताबन होता तो फिर किताब खोली. लेकिन यहाँ हम्म किताबा हु है, उसने अपनी किताब हम्म खोली स्टूडेंट ने. इसका हम्म तर्जमा ने में करेंगे और इसका तर्जमा अपनी किताब. और इसका क्या तर्जमा होगा? रायतु बैता का. रायता मीन्स मैंने देखा रा का मतलब देखना तुम्हारा होता है. घर. मैंने हाँ देखा तुम्हारा घर. तुम्हारा घर. ठीक है. मैंने देखा है, आई सॉ योर हाउस. हम्म. अच्छा ये पढ़ें क्या कह रहे हैं. The maf'ul bihi भी can कैन be ये a प्रोनाउन. pronoun. For example, ra'aytu bilalan wa sa'altuhu. अब इसमें ये दो जुमले हो गए ना. अब ये एक जुमला नहीं है. ये जब वाव आ जाता है बीच में तो दो जुमले हो जाते हैं. ठीक है. जी अब ये जी जुमला जो है, इसमें दोनों जो हैं, इसमें फाइल क्या है, जमीर है. और मफूल क्या है, वो इस्म जाहिर है. जी ठीक है ना. जी मफूल इस्म जाहिर है ना. जी. जाहिर है. सिर्फ फाइल ही इस्म जाहिर नहीं होता, 14. मफूल भी इस्म जाहिर हो सकता. ठीक है ना. right. लेकिन उस वक्त जरूरी नहीं होता कि आपका पहला और चौथा सीगा है. जब मफूल इस्म जाहिर होता है 14वां. हाँ तो ये 13वां है. कोई भी 13वां आ सीगा. सकता है. कोई भी नहीं, कोई भी आ सकता है. जब मफूल इस्म जाहिर होता है तो कोई भी जी सीगा जी. जब फाइल इस्म जाहिर होता है तो सिर्फ पहला और चौथा आता है. अब ये 13वां है तो क्या तर्जुमा होगा? मैंने देखा. मैंने देखा बिलाल को. हाँ. और सालतू. और सालतू का उससे मतलब क्या है? सवाल किया. मैंने सवाल किया मैंने सवाल किया उससे. उससे. ठीक है हम्म, ना. तो ये जी. जो जमीर है ये तो उधर ही जा रही है, तू की तरफ ही हम्म जा रही है ना. मैंने सवाल हम्म किया, मैंने देखा. और बाकी ये हम्म. हु की जमीर किधर जा रही है? बिलाल की तरफ. बिलाल की तरफ. जी. अब ये दोबारा से बिलाल लाना बहुत ही बेवकूफी है. बस अलतू बिलालन हम्म ये नहीं ला हम्म सकते. जब हम्म दूसरी दफा आप लाते हैं, अगला जुमला लाते हैं, तो उसमें फिर आपने जमीर लानी होती है उसके मुताबिक. अदद और हम्म जिन्स में उसके मुताबिक आएगी. देखें ये भी हम्म, मुजक्कर है और वाहिद है, और ये भी मुजक्कर और वाहिद है. जी. तो ये जमीर अब कौन सी है जो मफूल बन रही है? हाँ ये पहली.
राइट पहली हैंड वाली या लेफ्ट हैंड? और लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड वाली जो होती है ना। और देखो ये जी पूरी नजर आ रही है आपको, तू नहीं पूरी नजर आ रही, जो फाइल बन रही है पूरी नजर नहीं आ रही, वो तो अन्ना है, हम्म वो तो जी नजर ही नहीं आ रही। फाइल हम्म की जमीर जो होती है ना वो आपको वो नजर नहीं आती, बस एक अलामत होती है, उससे आप पहचानते हैं कि अच्छा भाई ये फाइल है। तू जी है तो फाइल है, ता है, ती है तो ये फाइल है, ता पे सुकून है तो उसके अंदर जमीर हम्म फाइल है। लेकिन ये हम्म वाली साफ साफ आपको नजर आती है, जी ये आपको मंसूर। पता है ये इसकी तरफ लौट रही है, हम्म क्योंकि इसकी तरह इसके लिए ही लाया है ना यहाँ पे, जी बताने के लिए या बताने उससे के लिए। अच्छा, द नाउन ऑफ द तनवीन इज फॉलोड बाय ए कसरा। अब ये क्या दूसरा। कह रहे हैं हम्म कि मैं इसको पढ़ती हूँ, ठीक है। जी द नाउन ऑफ द तनवीन, तनवीन की जो नून होती है, सॉरी नाउन नहीं, नून ऑफ द तनवीन इज फॉलोड बाय ए कसरा इफ द नेक्स्ट वर्ड कमेंसेस विद हमजातुल वस्ल। जैसे आप मिसाल देखिए, मिसाल से समझाती हूँ। जैसे ये आपका तनवीन वाला नाम आ गया ना, हम्म नाम क्या है, इस पे तनवीन आ गई है, इसमें जाहिर है इस पे तनवीन आ गई है। अब इसको आपने मफूल के साथ मिलाना है, हम्म तो मफूल पे अगर मा अन होता तो ठीक था, लेकिन अल मा आ है ना, हम्म तो अब क्या है, इनको मिलाएंगे कैसे, कैसे हम मिलाएंगे? जो नाम से मिलाएंगे हम हाँ, हामिदुन निल हमिदुल मा। वेरी गुड वेरी गुड। हम इसमें हाँ छोटा सा एक नून ये जो होता है ना, हाँ, इसकी जगह हम नून लाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बीच में। आपने देखा नून ने कुतनी लिखा होता है कुरान में, कभी पढ़ा है आपने? जी जी आप तो वेद तजवीद ही पढ़ी है ना, आप तो आपने जी देखा जी होगा, हाँ छोटा तनवीन के ये बाद छोटा सा नून होता है। हाँ नून से मिलाते हैं उसको हाँ। हाँ, अब आप इसको हामिद दुल मा आ नहीं पढ़ना, दुल हम्म नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है? हामिद। हामिद दू, दू तो पढ़ना ही है, लेकिन जो दूसरी वाली तनवीन है, यानी इसको आप नून में चेंज कर देंगे, सेकंड वाले पेश को आप नून में चेंज करेंगे, तो हामिद दू नील मा आ पढ़ेंगे। हाँ सही। अभी देखते हैं ये लोग क्या बताते हैं। अभी इन्होंने बताया यहाँ पे शरीबा हामिद दू नील मा, नीलमा जी। यानी ये दाल भी पढ़ी है इन्होंने, दाल को छोड़ा नहीं है, हामिद दू पढ़ा है इन्होंने, हम्म ठीक है। दाल की दो पेश नहीं पढ़ी बल्कि एक पेश पढ़ी है, हामिद दू और हम्म फिर नील मा आ। हम्म तो ये पढ़ने का तरीका होता है, जब तनवीन के बाद अलिफ लाम आ जाए तो फिर हम्म कैसे मिलाते हैं, नूने कुतनी लिखते हैं, नीचे जेर लगाते हैं। कितनी प्यारी प्यारी हम्म, बातें हैं। जी ये तजवीद का कायदा है जो उन्होंने यहाँ पे आपको बताया। जी क्योंकि तनवीन में उस्तादा नून छुपी हुई होती है ना, हाँ। हामिदुन, तो वो हम्म, नून को हम नीचे साकिन ले हटा आते हैं के उसको कसरा राइट। देते हाँ, हैं। लेकिन दाल के ऊपर पेश भी तो पढ़नी है ना, उसको तो नहीं छोड़ हाँ, सकते क्योंकि ना। वो दो दो है ना, तो एक पेश मतलब इट विल रिमेन एंड हम्म, दूसरी पेश विल गेट कन्वर्टेड टू द नून साकिन व्हिच वी विल रीड विद कसरा। हाँ ऐसा ही होगा। तो सही। एक पेश को रखेंगे और दूसरी को हम नून जेर वाली में चेंज करके आगे, इसे नूने कुतनी कहते हैं, तो यहाँ पे हम्म लिख देते हैं तजवीद में। ये कुरान हम्म मजीद में आप देखें तो हर मुसहफ में लिखा होता है नूने कुतनी, हमारे मुसहफ में भी होता है, अरबी में भी होता है। अरबियों को तो हम्म पता होता है कि हमने यहाँ क्या पढ़ना है ना, इसलिए आपका हम्म ध्यान यहाँ नहीं लगाया गया ना, हम्म यहाँ नहीं सूरतुल लगाया गया। कहफ में भी दो बार है ना उस्ताजा, सूरतुल वो कहफ में दो वो बार आता है। वो पाकिस्तानी मुसहफ में होगा, दूसरे वाले में नहीं होता, अरबियों वाले में नहीं होता। अरबियों को पता होता है कि हमने इसको कैसे पढ़ना है, वो नहीं लगाते। आप उसमें देखेंगे ना, 100% तो मुझे नहीं है, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि हमारे में लिख के देते हैं, क्योंकि हमारे वालों को तो पता नहीं, वो तो पेज से पढ़ देंगे ना, हम्म तो फिर वो नून लगा के उसको नून कुतनी जजेर देते हैं। हमारे मुसहफ में ऐसे लिखा हो। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि हियर इज द कसरा इज नॉट एडेड, इट इज डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। जी अच्छा, क्या कह रहे हैं? हाँ, हियर इफ द कसरा इज नॉट एडेड, अगर हम ऐड नहीं करेंगे कसरा नून के नीचे तो हम्म इसको डिफिकल्ट हो जाएगा प्रोनाउंस करना, हमें हम्म दुल मा आ बन जाएगा। हम्म तो प्रोनाउंस द लेटर कॉम्बिनेशन नल, नल जो होगा ना, हम्म नून भी लगाना है और फिर जेर भी लगानी है, हम्म ठीक है, कसर नून कसरा वाली लगानी है, वरना अगर आपने हाँ कसरा उस्ताजा ना लगाया और जबर लगा दिया हाँ तो नल मा आ नहीं पढ़ना। हाँ उस्तादा, कस कसरा इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी बोलिए। हाँ जी, जैसे कि हामिदुन में एक नून साकिन है और अल मा में लाम साकिन है, तो उसका ये एन और एल दिया हुआ है ना,
हामिदुन है ना ये पूरा वर्ड, तो वो नून साकिन और लाम साकिन, हाँ तो तो फिर लेकिन दो आप साकिन इकट्ठे नहीं पढ़े जाते, तो फिर जी। हाँ तनवीन के साथ हम पढ़ ही नहीं सकते। देखिए इसलिए तो मुदाफ पे तनवीन नहीं लाते ना, कि वजह क्या है मुदाफ पे क्यों नहीं तनवीन लाते, क्योंकि हम पढ़ नहीं सकते, आगे अलिफ लाम वाला इसम होता है, नकरा प्लस मार्फा होता है ना, तो फिर हम पढ़ नहीं सकते, इसलिए तनवीन जो अब ये मुजाफ मुजाफिल है तो नहीं है ना, इस पे तो लाना है लाजिम, ये तो मुजाफ मुजाफिल है नहीं है, इस पे तो लाजिम ये फाइल है ये मफूला में तनवीन लानी है ना, वरना फाइल नहीं बनेगा। तो इसको फिर हमने कैसे पढ़ना है, इसको पढ़ेंगे हामिदू निल मा, वो ये यहाँ पे ये दिस इज कॉल्ड इल्तकाए साकिनैन, ठीक है, दो साकिन इकट्ठे हो जाते हैं तो इस तरह पढ़ा जाता है, ये लाम पे भी है और यहाँ भी दुन है ना, दुन पे तनवीन साकिन आ रहा है ना, हामिदुन, तो दुन पे साकिन आ रहा है, यहाँ भी साकिन है यहाँ भी साकिन है, तो हम नहीं पढ़ सकते, इसलिए हम क्या करते हैं नून के नीचे जेर लगा देते हैं। अच्छा उसके बाद क्या है, व्हेन एवर सच अ कॉम्बिनेशन occurs it is removed by inserting a कसरा between them, तो दोनों के बीच में एक कसरा लगाएंगे फिर पढ़ेंगे। here are some more examples, अब इसको पढ़ें। सअला बिलालुन बिलालू बिलालू, इसको फिर निब्नुहु निब्नुहु, बिलालुब, बिलालू, हाँ नहीं, यहाँ बिलालू पढ़ेंगे पहले आप, फिर नून के नीचे जेर पढ़ेंगे, बिलालू निब्नुहु, निब्नुहु निब्नहु, निब्नहु। इबना क्यों आया, क्योंकि ये मफूल बन रहा है ना, इसलिए इबना पे जबर आई है मुजाफ पे, तो बिलालू बिलालू भी पढ़ेंगे और निब नहु भी पढ़ेंगे, अलिफ तो खाली है उसको पढ़ा ही नहीं जाएगा, निब नहु, तो ये पढ़ने का एक तरीका है, और गलत नहीं, कुरान में तो बिल्कुल गलत नहीं पढ़ना चाहिए, और यहाँ सीखेंगे तो वहां कुरान पे भी पढ़ेंगे ना। उसके बाद समिया फैसा लू निब लू निल अजाना, निल अजाना, फैसा लू निल अजाना, ठीक है ना। अरबी में जो होता है ना, इंग्लिश में इसको दाल ही पढ़ा जाता है, ये अरबी में भी दाल पढ़ा जा सकता है, इसको आदान भी कह सकते हैं, आजान भी कह सकते हैं, जैसे होता है ना अज़िक्र भी कह सकते हैं, अद्दिक्र भी कह सकते हैं, दोनों तरह कह सकते हैं। वहल मिम मुद्दक्किर, वहल मिम मुद्दक्किर क्यों आता है वहां पे, क्योंकि वो एक जाल जो होती है उसको दाल में चेंज कर देते हैं। तो आगे नंबर 4 क्या है, वो ये पढ़िए, थोड़ा सा रह गया बस। We have learned earlier that most Arabic verbs have only 3 letters, which are called radicals. The first letter is called the first radical, the second is called the second radical, and the third is called the third radical. तो हम इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट रेडिकल को हम फा कलमा बोलते हैं, इस वाले को हम सेकंड वाले को ऐन कलमा बोलते हैं, और इसको हम लाम कलमा बोलते हैं। तो फा अल का कताबा क्या बन जाता है, फा आ ला बन जाता है। तो हमेशा जो भी फेल बनता है, माजी का पहला सीगा सुलासी मुजर्रद से जब बनता है तो वो 3 लेटर से बनता है जो रूट वर्ड होते हैं। हर इस जो भी नाउन होता है या फेल होता है उसका रूट वर्ड होता है, फेल का भी होता है और इसम का भी होता है, ठीक है, और दोनों में सेम होते हैं, सेम रूट वर्ड। ये किताब का भी यही रूट वर्ड होगा, इसम किताबुन का भी यही, अल किताबू का भी यही रूट वर्ड होगा, कुतुबुन का भी यही रूट वर्ड होगा, और कतबा फेल का भी यही रूट वर्ड, ठीक है। अगर मुजारे बनाएंगे यक्तुबू तो उसमें भी रूट वर्ड तो यही रहेगा, ठीक है। तो रूट वर्ड नहीं चेंज होता, बस माजी का ये पहला सीगा बनाना हो तो ये आपका रूट के और तीनों लेटर ले ले और तीनों पे जबर लगा दें, ठीक है। फिर बाप के मुताबिक जो है वो कभी कभी यहाँ पे जेर आ जाती है, बाप समिया आए तो, और बाप नसर आए तो पेश आ जाती है, ये बीच वाला चेंज होता है। चले आगे पढ़े, नोटिस दैट द मादी, Notice that in the mazi, the first and the third radicals have fatha. The second radical may have fatha, kasra, or dhamma. For example, zahaba, dakhala, kharaja, shariba. देखा शराबा तो पढ़ा ही नहीं जा रहा ना, शरीबा, इसलिए वो देखिए ये सारा जो है ना अब फाहमा नहीं पढ़ा जाएगा, फहीमा, फाहिमा कर देते हैं, और इसको कबारा नहीं पढ़ा जा सकता, कबीरा नहीं पढ़ा जा सकता, तो कबूरा कर देते हैं,
तो ये क्यों चेंज करते हैं? तकारी जब भी अरबों अरबों को मुश्किल होती है ना कोई लफ्ज निकालना, तो फौरन उसकी हरकत चेंज कर देते I see. हैं। उससे फिर हमारे रूल बन जाते हैं, हम रूल बना लेते हैं, समझ याद कर लेते हैं कि ये इस हाँ बाब में जाएगा। ठीक है। सही हाँ इसका इसका मुझे मुजारे बताएं। ज़हाबा मुजारे क्या बनता है? मुजारे यज़हबु कोई और नहीं हाँ बोलेगा, इनको करने दे, मैं गलत टेस्ट कर रही हूँ। ज़हाबा ज़हाबा यज़हबु या ज़हाबू, दोनों पे जबर होगी। ठीक है ना। हम्म अगर यहाँ पर या यहाँ पर, दोनों में से एक जगह पर, यानी ये आपका कौन सा रेडिकल है? सेकंड रेडिकल है। और ये आपका क्या है? ऐन कलमा है और लाम कलमा है ना। सेकंड और हम्म थर्ड रेडिकल में अगर आपका हरूफ हल्की में से आ जाए कोई, तो वो बाप फतह हा होता है। ठीक है। दोनों तरफ जबर आएगी। ज़हाबा यज़हबू, हम्म इधर भी जबर आ रही है, माजी में भी, उधर भी जबर आएगी। तो वो कब आती है? बाप फतह हा में ही आती है ना, और तो कहीं नहीं आती। और फतह, जाल पे सुकून आएगा यज़हबु यज़ हाँ वो तो जब मुजारे यज़हबु बनाएंगे ना। मुजारे जी बनाना जी बता दूं यहीं पे कैसे बनाते हैं? हाँ बना बताओ अलामते मुजारे लगाएं। अलामते मुजारे क्या होती है? सबसे पहले या होती है। ठीक है। या होती वो जी तीन होती है ना, यतान होती है ना। या, हम्म ता हम्म और अलिफ और नून। ठीक है ना। ये हमेशा हम्म, शुरू में लगते हैं फेले माजी में, और फिर मुजारे बन जाते हैं। सही तो ये हमारा जाल है, उससे पहले हमने या लगाई, और यहाँ पे ओके हमेशा फतह लगेगी। ठीक है। ये फतह ही लगेगी, चेंज नहीं होगी। हम्म और ये सेकंड लेटर है, ये जो आपने रखा है यहाँ पे, इस पे सुकून आएगी। यज, और बाकी ऐसे ही लिख। जी अगर बाप फतहा है तो ऐसे ही लिख दें। अगर कोई और बाब है तो फिर उसको चेंज करेंगे। जैसे दरबा यदरिबू होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जेर आ जाएगी। लेकिन ये तो बाप फतहा है ना, तो फतहा में जबर ही आती है, तो हम यजहबू लिख देंगे। तो आपने क्या करना है? इससे पहले अलामत मुजारे लगानी है, और ये वाली फतह इधर कर दें और इसको सुकून दे दें, तो ये यजहबू बन गया। फिर ठीक बाप है। पे भी तो ये हाँ मुजारे बन गया। ठीक है। हम्म फिर हम्म अमर बनाना भी सीखेंगे। अच्छा, ये हाँ दाखला है, और अब इससे क्या बनेगा? यहाँ पे या लगाएं, और उस पर हाँ क्या यद लगाएंगे? जबर। यद यद और वे यद जबर, यद यहाँ यद पे खुल ऑलवेज सुकून। ठीक है। जी ये दो हाँ हरकत ऑलवेज सेम होंगी। और ये वाली जो होती है ना, ये आपने पेश करनी है मुजारे में। माजी में हम्म ये जबर होती है, मुजारे में ये राइट यजहबू पे बोला था ना आपने, ये जी यज, जी हाँ तो ये आखिर यस में हाँ पेश आएगी। दखलू हाँ दखलू हो जाएगा यहाँ दखलू कैसे होगा? यद याद, यद 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 खोलू सॉरी यद खोलू पेश आखिर आएगा में पेश आएगी, और यहाँ पर ये पेश आएगी। अब ये कौन सा बाब है? यदखुलू। यद ये तो खोलू बाब फतहा था ना, ये कौन सा है? अगर सेकंड रेडिकल पे क्या आ जाए? फाउलू फतहा दम्मा आ जाए। फाउला फाउला पाएगा नहीं फाउला नून नून फाउला, फाउला पे कैसे हो सकता है? मुजारे बना रहे हैं ना। हम्म फाउला तो माजी होता है ना। अच्छा नून हाँ नून है यद बाब। यद खोलू अगर देखो मिडिल लेटर जो है, ये मिडिल लेटर है ना, जाल हा बा, ये तीन रेडिकल है ना, तीन, ये फा है, ये ऐन है, ये लाम है। अगर हाँ मिडिल लेटर पे जबर आ जाए तो बा फतहा होता है। ठीक है ना। अच्छा यजहबू है ना। अब यहाँ हम्म पे मिडिल लेटर पे पेश आ गई, तो ये नून है, बाब नून है। अच्छा हाँ ये न, चीज मेरे समझ में नहीं आई थी नसरा यंसुरू होता है ना। नसरा माजी पे तो क्या है? दखला है ना, तीनों पे जबर है ना। हाँ नसरा है ना ये। और ये हाँ क्या है? यंसुरू है। तो यंसुरू के वजन पे नसरा हो गया ना बाप। हाँ ये कंफ्यूजन है था नहीं इसमें यद खोलू फाला तो समझ गई मैं ए, मतलब इसका ये नहीं समझ में आया मुझे आ जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, आ जाएगा, इंशाल्लाह फिक्र नहीं कर। इंशाल्लाह तो या ये फिर आपका बाप फतहा है, ये बाप नसरा है। खरजा, हम्म बनाए यख खरजा। यखरुजु आप यखरुजू बनाना, तो रा पे क्या आ रही है? यखरुज ये, यखरुजु पेश हाँ, आएगा पेश आ रहा है, तो जब रा पे पेश आएगी तो वो बाप नसरा होगा। अच्छा यहाँ पे भी आपका यद खुल्लू खा पे पेश आ रही थी, तो बाप नसरा था। यहाँ हाँ पे आपका हा पे जबर आ रही थी, तो ये बाप फतहा था। ओके ठीक है। नाइस मुजारे को देखें, मुजारे में अगर यहाँ मिडिल लेटर पे जबर है तो बाप फतहा है। अगर मुजारे में
मुजारे हाँ, बना रही है ना, जी यदखुलू जी आपने जी, तो हाँ हाँ, पेश आई है तो ये हो गया। मूव टुवर्ड्स, यखरुजू बनाए, इसको नहीं देखना, ये तो माजी है ना। जी जी जान, मुजारे, माजी के साथ मुजारे भी बनाना पड़ता है। और हम्म, मुजारे जब आप बनाते हैं तो उसमें अगर मिडिल लेटर पे पेश आ रही है तो बाब नसरा होता है, या ओके, खुरुजू। इसको बनाए शरीबा, यश 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 यशरिबू होगा ये तो, यशरिबू, रा नहीं हो सकता, यशरबा, यशरबू नहीं हो सकता। यश यशरबू, हाँ तो क्या बनेगा, यशरबू, रा पे यशरबू, जबर आ रही है। यशरबू, ओके। तो ये फिर फा वाला होगा। फा वाला नहीं होगा। फा वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि फा वाले में तो माजी में जहाबा आ रहा है ना, तीनों पे जबर आ रही है। लेकिन हम्म, इसके माजी में शारीबा में तीनों पे जबर नहीं आ रही माजी में, आई सी, ओके। तो ये बाब समी है ये। और समी है, अच्छा अच्छा, मैं ये समझने की कोशिश करूंगी, मैं पक्का नहीं हुआ अभी देखें, मुझे। समिया यस्माऊ होता है ना, हाँ हाँ, ये समिया की तरह हो गया और ये यस्माऊ की तरह हो गया, तो बाप हाँ, समिया में चला गया। समी, ये वाला ओके, समिया की तरह है ना, समिया है ना, हाँ हाँ, तो ये समी बराबर, यस्माऊ है, ठीक है। हाँ हाँ, तो ये आई बाप सी, समिया में चला गया, क्योंकि समी, ये फतह की तरह नहीं बनता। फतह में जहाबा यजहबू होता है, जाहिबा यजहबू नहीं होता। हम्म अगर जाहिबा यजहबू होता तो हम उसको बाप समिया में डालते। वो हम्म हम्म जहाबा है, हम्म, उसमें जबर है माजी में, इसमें माजी में जेर है, तो उस ज़ेर, बाब में कैसे जा सकता है, उसमें तो माजी में अच्छा, जबर है, यहाँ देखें, और जी इसमें जेर है। जी, अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा, फाहिमा यफहमू, यफ यफ हमू, अच्छा, यफ हमू, ये भी तो फाहिमा इसी तरह बना हुआ है, शरीबा की तरह। और मुजारे में हाँ, इसमें भी जबर आई है और उसमें भी यफहमू पे भी जबर आ रही है, तो तो ये ये भी कौन सा समी, बाब, समिया समी, बाब है, ठीक अच्छा है ना। अच्छा अच्छा, अच्छा, जी, उसके बाद कबूरा, यक यकरुबू, यक, यक यक, यहाँ पे सुकून आए, यक बू है ना, यकबुरु, पहले बा है ना, यक बुरू। अब ये कौन सा यकबुरु, बाब है, इधर भी पेश आ रही है और माजी में भी कबूरा में भी पेश आ रही थी। ये कौन सा बाब बनता है। नून वाला होगा ये, हाँ, ये नून वाला सारा, नहीं है, नून वाला होता ना तो माजी में फिर कौन सा होगा? जबर होती, नसरा यंसुरू होता है, ये है अच्छा, कबूरा माजी करूमा में, माजी हाँ में पे। अच्छा कोई और अच्छा, करूमा आके, यकरूम। अच्छा कोई हाँ और आके बताएं बताए, इसलिए, कौन बताएगा, हाँ, ये सारे आके मुझे माजी मुजारे बताए। मैं आऊँ सजा? आ जाए, नहीं आप नहीं, कोई और आइए जिसको बिल्कुल नहीं आता, आबिदा किस से भी चढ़ के है जो। आई होप ऐसा तो कोई नहीं होगा आबिदा जैसा। नहीं कोई कंपटीशन नहीं होगा मेरा। आबिदा को जरा देर से समझ आती है, आती तो है, आ जाती है भाई, देर से आती है। मैं स्मार्ट नहीं। आ जाए आप, आ जाए। लड़का, ज़हबा हाँ, यज़हबु हम्म, दखला हम्म, यदखुलु हम्म, खरजा यखरुजु हम्म, शारिबा यशरबु हम्म, फाहिमा यफहमु हम्म, कबूरा यकबुरु। हम्म। अच्छा, ये जो तीन बाप थे ना ये वाले, ठीक है, हाँ इनमें मिडिल हाँ लेटर पे माजी में जबर आ रही थी, ठीक है, जी तीनों पे जबर आ रही थी। और ये वाले जो दो बाब हैं इनमें माजी में जेर आ रही है, मुजारे में जबर आएगी, ऑपोजिट आएंगे, ठीक है। माजी में जी जेर और मुजारे में जबर हो तो कौन सा बाब बनता है, सीन बनता है। सामिया माजी में जी जेर मुजारे में जबर तो बाब समिया बनेगा। अगर माजी में भी जी पेश हो और मुजारे में भी पेश हो तो फिर कौन सा बाब बनेगा। काफ बाब हाँ, करुमा। हाँ, इधर भी पेश आ रही है और उधर यकबुरू बनाया तो उसमें भी पेशी आ रही है, तो ये बाब करूमा, ठीक है ना। और जी ये वाले जो तीन है इसमें जहाबा या जहाबू दोनों तरफ पेश आ रही है, यहाँ भी पेश है और मुजारे में भी पेश आ रही है। जब दोनों तरफ पेश होती है तो वो बाब फतहा होता है, ठीक है। फतहा जी यफ्ताहू होता है ना, दोनों तरफ जबर होती है। दखला या जी दुखुलू, माजी में जबर मुजारे में पेश, या दुखुलू तो ये नसरा हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, खरजा, यखरुजु बाब नून बाब नसरा। हाँ, इसमें माजी में तीनों पे जबर है और मुजारे में
पेश है तो नून हो गया। अच्छा, एक बाब इसमें रह गया, वो है दरबा यदरिबु, ठीक है ना। जैसे जी, नजला, यंजिलु। नजला यंजिलु, तो ये आपका क्या है, माजी में तो जबर ही आ रही है, लेकिन मुजारे में क्या आ रही है, यन जेर, यन जिलु। मुजारे में जे पे जबर आ रही है, जेर आ रही है, यन जिलु। ये कौन सा बाब है, नजला यन जिलु कौन सा बाब है आबिदा। आपको 6 बाब याद करने हैं, ठीक है ना। बाब फा जो होता है वो फतहा यफ्तहु होता है, जो इस पैटर्न पे आएगा ना, दो तरफ जबर आएगी, बाब फतहा होगा। उसके बाद बाब दरबा है, अगर इधर फतह होगी और इधर फतह हो, दोनों तरफ फतह हो तो बाप फतह होगी। माजी में भी फतह मिडिल लेटर पे, सिर्फ मिडिल लेटर की हरकत चेंज होती है, बाकी नहीं चेंज होती। तो अगर माजी में फतह है, मुजारे में भी आपका फतह आ रहा है, तो ये बाप फतह होगा। सेम सेम है दोनों। माजी में जबर है लेकिन मुजारे में जेर आ रही है, तो ये बाप दरबा होगा। समझ आ रहे हैं, दुआ से दरबा, फा से फतहा। उसके बाद आप आगे चले जाएं नून पे, नसरा पे, तो माजी में आपकी जबर है, मुजारे में पेश है। देखिए हर एक अलग अलग है, ये दोनों जबर हैं, ये एक जबर है एक जेर है, और ये जो है एक जबर है एक पेश है। अब आ जाए बाप समिया में, तो ये जो पहला वाला है, इसमें अभी तक तो जबर ही आ रही थी ना सब पे जबर ही आ रही थी अभी तक माजी में। लेकिन अब बाप समिया में क्या होता है, यहाँ पे जेर आ जाती है, ठीक है, और आगे क्या आ जाती है, जबर आ जाती है। अगर इस तरह का मामला हो रहा हो, माजी में जेर और मुजारे में जबर आ रहा हो, तो बाप समिया होता है। और अगर माजी में तीनों पे जबर आ रही हो, मुजारे में डिफरेंट अरकात आ रही हो, जबर जबर आ रही हो तो फतहा, जबर जेर आ रही हो तो दरबा, और ये जबर और पेश आ रही हो तो नसर। नसरा यंसुरू होता है ना, दरबा यदरिबू होता है ना, दरबा यदरिबू होता है, ये जेर आती है। फतहा यफ्तहू होता है, दोनों तरफ जबर आती है। तो इस तरीके से होता है। तो ये हो गया। चलिए ये पढ़े, हम छुट्टी करते हैं फिर। कसरा पढ़े आके। हाँ, कसरा, पढ़िए पढ़िए। कसरा यक्सिरु। हाँ ये फेल है, इस समय फेल है हर्फ है, जल्दी बताएं। ये फेल है। फेल है, अब इसका मुजारे बनाएं। इधर तीनों पे जबर है तो कसरा तीन, देखिए मेरी बात सुनो, इधर अगर तीनों पे यक्सिरु। जबर हो ना, तो तीन पॉसिबिलिटी होती है, या तो मुजारे में जबर ही आएगी, या जेर यक्सुरु। आएगी, या पेश आएगी मिडल लेटर पे। तो कौन सा आएगा, कसरा यकसुरु होगा, यकसिरु होगा, या यकसुरु होगा। कसरा यक्सिरु होगा ना उस्ताद जी? यकसिरु होता है, कसरा यकसिरु, कसरा यक्सुरु नहीं, बाबे नसरा से होगा। नसरा से होगा, यहाँ पे पेश आएगी मुजारे में। जी बाप जी। फतहा भी नहीं बन सकता, बाप दरबा भी नहीं बन सकता, और यकसुरु। मुझे कोई बताएगा चेक करके इसका, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ इसमें। मुझे यकसिरु भी लग रहा है और यकसुरु भी लग रहा है, कोई चेक कर ले प्लीज, यकसुरु है या यकसिरु है। जी मैं करती हूँ। मुझे तो लगता है दरब, नहीं कोई और कर रहा होगा, देख लेते हैं। आप इसको पढ़ें फिर चेक करके बताते हैं। समिया, समिया यस्माउ। हाँ क्योंकि यहाँ जेर आ गई ना, तो मुजारे में जबर आएगी, ठीक है। यस्माऊ, ये आपको याद जी करने जी। पड़ेंगे। फहिमा, यहाँ भी जेर, यफहमु। हाँ यहाँ जेर आई है तो मुजारे में ऑपोजिट होगा ना, जबर आएगी। जी फहिमा यफहमू, यफ उमू नहीं हो सकता, यफ अमू नहीं हो सकता, यफ इमू, यफ अमू होगा। शरीबा जी। यशरबू, जब यहाँ पे जेर यशराबु। आती है ना, तो मुजारे में जबर ही आती है। यहाँ पे जेर आए, मुजारे में जबर आती है। यशरबू, जी यफहमू, यस्माऊ, तो माजी में जेर। अब देखें यहाँ पे भी जेर आ रही है हाफिजा, तो क्या होगा, मुजारे में जबर आएगी, क्या आएगा, हाफिजा यह यह हाफिजा यहफाजु। बाबे हम्म, सीन से हम्म। यहफाजु। बाप सीन से आ रहा है ना, तो यहाँ जी जेर है तो वहां जबर आएगी। आपके भी कच्चे हैं थोड़े। हाफिजा यहफजू, मुजारे में। जी ये सारे एक ही जैसे हैं, एक ही पैटर्न पे बने हुए हैं, ये वाले, ये चारों, ये वाले।
ये एक ही पैटर्न पे है इनके, इधर जबर ही आएगी, यस्माऊ, फहिमा यफहमू, शरीबा यशरबू और हाफिजा यहफजू। इसलिए मैं आपको करानी के मुजारे में जाके आपको थोड़ी आसानी हो जाए। दरबा, जी, दरबा यदरिबु, हाँ ये तो रटा हुआ है दरबा, अब इधर जबर आई है ना तो इधर जेर आएगी, ऑपोजिट हो जाएगा। जी, जी, अच्छा, और दखला यदखुलु, दखला या दुखुलू पेश आएगी तो कौन सा बाबिन बाब है? नसरा है, बाबिन सरा, जी, नून बाब है। या अकला अकला, यकुलु, हाँ अकला बाबिन सरा या से, कुलू, ये भी नसरा से है, क्योंकि या कुलू में पेश आ जाती है इधर, तो ये भी नसरा से। जी, ये वाला गसला, वसला यगसिलु, या बाबी दरबा से, ये दरबा से है। ये दरबा यदरिबू की तरह बन रहा है ना, दरबा जी, यदरिबू गसला यगसिलू, तो ये बाब दरबा से है। कतला कतला यक्तुलु, हम्म, बाबिन सरा से, हम्म। खुबजुन का क्या मतलब है? एक खूबसूरत रोटी, ये इसमें है। हाँ, इसका कोई जुमला बना सकती है खुबजुन का? अ, अ, जुमला। अकला हामिदुन खुबजुन, हाँ, अकला खुबजुन हामिदन, रोटी को फाइल कर देंगे। रोटी को फाइल करेंगे, मैंने कहा है ना, जो फाइल होता है वो तो कोई नहीं नहीं, इंसान होता सॉरी है या सॉरी, अल्लाह ताला होता है। तो फिर हामिद को अगर फाइल लाएंगे तो नहीं, अकला खुबजुन, उसने रोटी खाया। ये तो हो सकता है, लेकिन फाइल इसम ज़ाहिर ला के बताएं मुझे। अ, अ, तो अच्छा फिर ये भी आपने, रफा हालत, अच्छा आपने अभी अकला क्या कहा था? हामिदुन खुबजुन, आपने अभी क्या कहा था? अकला खुबजुन, हाँ, तो आपने तो अकला के अंदर भी फाइल बना खुबजन दिया और इसको होगा, भी फाइल, नहीं इसको खुबजन, सॉरी, खुबजन, खुबजन होगा इसका, चाहिए खुबजन, इसको रफत नसब करना है। हाँ या तो तो अकला हामिदन खुबजन, हामिदुन खुबजन, हामिदुन, इतना गलती करती हूँ, हामिदुन, खुबजन, ये फाइल बनाएंगे और खुब खुबजुन को क्या बनाएंगे? मफूल मफूल बनाएंगे, बनाएंगे। ठीक खुबजन, है, मफूल, जी, क्योंकि ये फाइल नहीं हो सकता, ये तो नहीं खा सकता ना कुछ, जी, जी, खाएगा तो कोई बंदा है ना, हाँ, है ना, तो जी, इसको तो अब फाइल नहीं बना समझा, सकते, इसको तो ऑब्जेक्ट ही बना दे, ये ऑब्जेक्ट है ना, इसको तो वही बनाएंगे ना, मफूल ही बनाएंगे। तो कभी गलती नहीं करना ठीक, किसी चीज को उठा के फाइल बना दे। इंशाल्लाह एहतियात करेंगे। हम्म, तो अब आपको समझ आई कि क्या है, इसलिए मैंने जुमला बनवाया था कि आप इसको जी, क्या बनाती हैं, फाइल बनाती है कि मफूल बनाती जी, बहुत शुक्रिया। है। ये देखें, खाने वाला कोई आदमी है और जिसको खाया जा रहा है वो कोई चीज है, इसको सब्जेक्ट कहते हैं, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में, इसको फाइल कहते हैं और इसको मफूल कहते हैं। जी, मफूल जो होता है ना वो उसको चीज होती है जिसको खाया जाता है, ठीक है, जी, और जी, ये जो होती है ये फाइल होता है। अभी जैसे, हाँ चले आगे, कोई आएगा बनवा लूँ। जय्यदन का मतलब होता है वेल, ठीक है, गुड, वेल, जी, है ना, दोनों मीनिंग हो सकते हैं। अच्छा, इनाबुन, ग्रेप्स, इनाम जमा, इसमें है, ये जमा जी, है, ठीक है ना, इनाबुन जमा है। जी, और ये क्या है, यहाँ पे गलती से लिखा हुआ है, ये मौजून होता है, मौजूद, बनाना, टाइपिंग जी, मिस्टेक है, ठीक है, जी, बनाना है। और तीन उन, फिग, फिग क्या होती है? तीन, यानी जी, तेन, इंजीर, इंजीर, हाँ, फजरुन, डॉन, फजर जिसे कहते हैं, फजर की अजान। और ये क्या है? जी, जवाबुन, आंसर, सुआलुन, क्वेश्चन। थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी आनी चाहिए, जी, कुछ नया सीखना चाहिए ना, वहीं तो नहीं रहना। जी, हयतुन, स्नेक, स्नैक, स्नेक, सांप, स्नैक नहीं होता, स्नैक, स्नैक तो खाने स्नैक, वाले होते हैं, स्नैक्स बच्चे जो खाते हैं। हयतुन स्नेक, ठीक है, कोई बात नहीं है। जी, हाँ मुझे भी कुछ नहीं आता। बकालुन, क्या बकालुन है, ये ग्रोसर, ग्रोसरी स्टोर पे जो काम जी, करता है ना उसको ग्रोसर को कहते हैं। और ग्रोसर, जी, बकाला जो होता है वो ग्रोसरी स्टोर होता है, ठीक है। असा क्या होता जी, है? स्टिक होती है, छड़ी स्नैक, होती है। और कहवा क्या जी, होता है? कॉफी होती है, ब्लैक टी कॉफी, कह लें, ठीक है। जी, दुकानुन, शॉप, और दकाकीनु, अब इस पर एक पेश क्यों आई है बताएं? ये गैर मुंसरिफ है। तो एक पेश आई है बगैर किसी वजह के, अलिफ लाम भी नहीं आ रहा फिर नहीं, भी एक दुकान पेश है। की जमा
दुकान की जमा में अच्छा, हुआ इसका गैर मुनसरिफ होने की वजह बता दें मुझे, क्या मेन ये मफाइलू के वजन पर है, मफाइलू के वजन पर, हाँ, इस वजह से। मफाइलू के वजन पे है। अगर मफाइलू के वजन पे हो तब भी वो गैर मुनसरिफ होता है, और मफाइलू के वजन पे हो या भी आ रही हो तो वो भी जमा होती है। सबूरतुन क्या होता है? राइटिंग बोर्ड, ब्लैक बोर्ड भी कहते हैं ना, आजकल तो वाइट बोर्ड हो गया ना, इसलिए राइटिंग बोर्ड लिख दिया है। पहले जमाने में सबूरतुन ब्लैक बोर्ड ही होते थे, नीट चौक से लिखते थे। अब वाइट बोर्ड और पेन से लिख लेते हैं, मार्कर आ गए, ठीक है। और जाइए दन पहले, ठीक है। नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट वीक शुरू करेंगे इंशाल्लाह। आई होप कि आप लोगों को फायदा हुआ होगा, ये जो चीजें हमने आज सीखी है ना, ये सबसे। जी और जिनको पहले से आता था उनको भी जरूर फायदा हुआ होगा, उनका रिवीजन वगैरह हो जाता है, सब चीजें हो जाती हैं। तो किसी भी क्लास को लाइटली ना लें, बहुत कुछ सिखाया जा रहा होता है, ठीक है। बेशक कभी उधर ना सिखाया जी जाए तो मैं खुद सिखा देती हूँ, है ना। लेकिन आज तो यहाँ जी बहुत कुछ सिखाया गया आपको इसमें। खाली ये वर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह मीनिंग ही देखें, आप याद करें, हम्म, ठीक है ना। जी उर्दू में याद करें, कोई जरूरत नहीं। और फिर उसके बाद ये माजी हैं सारे, ये जो तीनों पे जबर या मिडल में जेर या मिडल में पेश आती है, ये सब माजी होते हैं। और इनके मुजारे जो होते हैं वो अलामते मुजारे लगाने से बनते हैं। और जब अलामते मुजारे लगाते हैं तो उस पे जबर लगाते हैं, फिर जो अगला लेटर होता है, जैसे इसका बनाना है तो फा पे क्या आ जाएगा? सुकून आ जाएगा, ये यफ बन जाएगा, ठीक है। अब ये वाली हरकत हमने चेंज करनी होती है, ये कभी जेर होती है, कभी जबर होती है, कभी ये पेश भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। अगर यहाँ जेर आ रही है तो यहाँ ऑपोजिट आएगी, हाँ आ जाएगी, यहाँ पे जबर आ जाएगी, यहाँ ऑपोजिट आ गई, ठीक है। यहाँ जेर होगी तो यहाँ जबर होगी, यफ अमू। और ये वाली तो इसी तरह रहनी है, जैसे माजी में आपका यहाँ पे पेश जबर ही रहता है ना, मुजारे में पेश ही रहता है। माजी में यहाँ भी जबर होता है और यहाँ भी जबर होता है, लेकिन मुजारे में यहाँ जबर और यहाँ पेश होता है। तो ये इसी तरह रहते हैं, ये भी इसी तरह रहता है, बस ये वाली हरकत चेंज हो रही होती है, ये कभी पेश हो जाती है, कभी जेर हो जाती है। तो वो आपको थोड़ा सा याद करना है, हो जाएगा वक्त के साथ, ठीक है। तो वो जो ऊपर हमने जुमला फेलिया में जो हमने बनाए थे ना, जो हमने फेल पढ़े थे माजी के, और साथ उनके मुजारे बनाने की प्रैक्टिस करनी, मैं होमवर्क में दे दूंगी, ठीक है। आप प्रैक्टिस करना, हो जाएगा। चलें ठीक है, ओके। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, जज़ाकल्लाह इस खैर। थर्सडे को आपकी क्लास नहीं है, ठीक है। तो आप लोग नहीं अपना कोई और काम कर सकते हैं, कोई सही डॉक्टर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जो भी करने हैं कर लें, अल्लाह ना करे। लेकिन घर के भी जी बहुत सारे पेंडिंग काम होते हैं। तो थर्सडे को मैं दूसरी क्लास लेने वाली हूँ तफसीर की, तो आपकी क्लास नहीं होगी। लेकिन उसके बाद 2 वीक फिर आपकी क्लास होगी, फिर तीसरी वीक में मेरी क्लास वो वाली आ जाती है। तो है। ये नहीं है कि मैं थर्सडे को लेने ही नहीं वाली, 2 वीक मैं आपकी लूंगी, ठीक है। उसके बाद जो वीक आएगा उसमें भी लूंगी, उससे अगले वीक में भी लूंगी थर्सडे को, लेकिन उससे अगले वीक में फिर मुझे तफसीर की लेनी हो, ठीक है। तो हर तीसरा वीक आपकी क्लास नहीं होगी, तो मैं बता दिया करूंगी ना, ठीक है। तो अभी आपकी क्लास कब होनी है? फिर दर्स सादिस कब पढ़ेंगे? छठा लेसन कब होगी क्लास? सैटरडे और लेंगे हाँ सैटरडे ना। सैटरडे होगी, फिर संडे भी होगी, फिर ट्यूसडे भी होगी, फिर थर्सडे भी होगी। जी नेक्स्ट वीक जो और होगी ना आपके, नेक्स्ट वीक आपकी थर्सडे को होगी, ठीक है। जी 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 उस्ताद। सही है। और जुम्मे को आप लोगों की छुट्टी होती है, परमानेंट छुट्टी होती है। थर्सडे को कभी कभी छुट्टी आएगी तो मैं बता दिया करूँ, सही है। जी ओके, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर। खैर। इस लेसन को खुद भी पढ़ना और जो पीछे पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस भी करना थोड़ा, ओके। इंशाल्लाह। जी 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 इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अपना काम जरूर करें वरना